The first chapter of English for grade 8 and 9 is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the model of tolerance. On page number 2, you can see 5 qualities of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. These qualities show us the tolerance level of Prophet, peace be upon him. He was रहमतुल आलमीन. रहमतुल आलमीन means तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए. जस्टिस, इंसाफ करने वाले. ह्यूमैनिटी, इंसानियत से मोहब्बत करने वाले. पेशेंस, साबिर, सब्र करने वाले. सादिक एंड अमीन यानी कि सच्चे और अमानतदार. मॉडल मीन्स मिसाल और टॉलरेंस का मतलब है बर्दाश्त या रवादारी. किसी के भी मनफी रवैये को, किसी के भी रवैये को अच्छे और मकसद तरीके से बर्दाश्त करना, जो कि किसी का लाइफ स्टाइल, किसी का रवैया जो कि हमसे मुख्तलिफ हो, उसको बर्दाश्त करना क्या है? टॉलरेंस है. और इसकी का दूसरा नाम हम सब्र कह सकते हैं. कुरान टेल्स अस 4 times अबाउट टॉलरेंस. इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन. इंडीड अल्लाह इज़ विद द पेशेंट, यानी कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है. बिफोर आई स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर, I want to explain the glossary of the chapter so you can understand the chapter well. It is on page number 5. First word is compassion. Compassion means a strong feeling of sympathy. Sympathy means हमदर्दी, किसी के लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी महसूस करना. Number 2, debt. Sum of money that somebody owes, यानी कि उधार या कर्ज. Epitome, a perfect example of something, किसी भी चीज़ की मुकम्मल मिसाल. Dreadful, very bad or unpleasant. Restraining, to stop somebody, something from doing something, किसी को किसी काम के करने से रोकना. Amnesty, a period of time during which people can admit to a crime or give up weapons without being punished. Amnesty means माफ़ कर देना, किसी को भी किसी भी अमल के लिए माफ़ करने देना. काउंसलिंग, प्रोफेशनल एडवाइस, मशवरा देना, किसी की किसी मसले में मदद करना. प्रिजर्वेंस, द क्वालिटी ऑफ continuing to try to achieve a particular aim despite difficulties. इसका मतलब यह है कि मुश्किलात के बावजूद किसी ख़ास मकसद के हसूल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखना. डिबेट, discussion, a formal discussion on any issue at a public meeting. Precedence, the condition of being more important than somebody else and therefore coming or being dealt with first. Means किसी को priority देना, किसी को importance देना. Adversity, a difficult or unpleasant situation, एक मुश्किल या नाखुशगवार सूरत हाल. Renounced means to state publicly, ऐलान कर देना, अवामी तौर पर एक ऐलान कर देना. Testified, तस्दीक करना, गवाही देना. To say that you believe something is true because you have evidence of it. इस बात पर यकीन रख लेना कि ये चीज़ सच है क्योंकि आपके पास इसका सबूत है. रब्बी इज़ Jewish religious scholar. यहूदियों के जो मजहबी रहनुमा हैं उनको जेविश कहा जाता है, रब्बी कहा जाता है. Ostracized, to refuse to let somebody be a member of a social group, to refuse to meet or talk to somebody, किसी से मिलने से या बात करने से इनकार कर देना, खारिज कर देना.
Opponent means mukhalif, a person that you are playing or fighting against in a game, competition, argument, etc. means एक ऐसा शख्स जिसके आप खिलाफ खेल रहे हो या उसके खिलाफ मुकाबले में हो या उसके खिलाफ कोई बहस कर रहे हो. It means opponent, मुखालिफ. Scarcity, not enough, कमी होना, ना काफ़ी होना. If there is scarcity of something, there is not enough of it and it is difficult to obtain it. Gracious, मेहरबान, kind, polite and generous, especially to somebody of a lower social position. किसी के साथ जो ऐसा बंदा जो कि आपसे नीचे है, गरीब है, उसके साथ काइंडनेस, पोलाइटनेस और मेहरबानी शो करना, रहम शो करना, ये ग्रेशियस है. रिवेंज, समथिंग दैट यू डू इन ऑर्डर टू मेक समबॉडी सफ़र बिकॉज दे हैव मेड यू सफ़र. बदला लेना, आपने किसी को तकलीफ़ पहुंचाई क्योंकि उसने आपको तकलीफ़ पहुंचाई थी. ग्लॉसरी के बाद come on page number 2. It's a verse of Quran Majid. O you who have believed, seek help through patience and prayer. Indeed, Allah is with the patient. O you who have believed, ए ईमान वालो, believed ईमान, ए ईमान वालो, seek help, मदद मांगो, through patience and prayer, सब्र और इबादत के साथ. Indeed, बेशक, अल्लाह इज़ विद द पेशेंट, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है. चैप्टर के स्टार्ट में ही हमें कुरान पाक की इस वर्स में ये समझा दिया गया है कि अल्लाह ताला से ईमान वाले जो हैं वो अल्लाह ताला से सब्र और इबादत के ज़रिए मदद मांगें, क्योंकि अल्लाह है जो वही सब्र करने वालों के साथ है. By tolerance, we mean a fair and objective attitude towards those whose lifestyle differs from us. आपको मैंने बता दिया था टॉलरेंस का मतलब क्या है. इसका मतलब है कि उन लोगों के साथ आपका अच्छा और मुनासिब रवैया जिनका तर्ज ज़िंदगी हमसे मुख्तलिफ है. फेयर मीन्स अच्छा या मुनासिब, ऑब्जेक्टिव मीन बामकसद, एटीट्यूड मीन्स रवैया, टुवर्ड्स उन लोगों के लिए, हुज जिनका, लाइफ स्टाइल तर्ज ज़िंदगी, डिफर्स फ्राम अस अवर्स हमसे मुख्तलिफ है, डिफर्स मुख्तलिफ है. ट्रांसलेशन मुकम्मल से क्या बनी? रवादारी से मुराद उन लोगों के साथ हमारा अच्छा और बमकसद रवैया है जिनका तर्ज ज़िंदगी हमसे मुख्तलिफ है. Tolerance is the virtue. Virtue means neki, which enables a person to forbear the attitude, negative remarks and action with patience and calmness. Virtue नेकी है. Forbear दरगुजर करना, माफ़ करना. Enables काबिल बनाती है. Attitude रवैया. Negative remarks बुरे जुमले, बुरे कलमात. Action अमल. पेशेंस सब्र और कॉमनेस खामोशी और सुकून के साथ. रवादारी एक नेकी है जो एक शख्स को काबिल बनाती है कि वो दरगुजर करे बुरे रवैये को, बुरे कलमात और अमल को खामोशी और सब्र के साथ. रवादारी एक ऐसी नेकी है जो इंसान को इस काबिल बनाती है कि वो खामोशी और सब्र के साथ दूसरों के मनफी रवैये, कलमात और अमल को दरगुजर करे.